सर हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर अटेंडेंस तो चैट बॉक्स में ही देना है ना? क्या क्या? अटेंडेंस चैट बॉक्स में ही देना है ना? हाँ चैट बॉक्स में ही देना है। सर तो कोई एक लड़का आपको स्क्रीनशॉट भी भेजता है शायद। हाँ स्क्रीनशॉट भी रहता है, कभी कभी अगर मिसिंग हो गया तो इसलिए। सर तो कौन सा वाला कंसिडर होता है, चैट बॉक्स वाला या फिर स्क्रीनशॉट वाला? देखिए स्क्रीनशॉट तो ऑब्वियसली वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है। यस सर, आपसे पूछे थे पहले तो आप बोले कि चैट बॉक्स में ही देना था। नहीं चैट बॉक्स में तो देना ही है, हम क्या बोल रहे हैं कि वो भी बेका स्क्रीनशॉट बेका में भी मान मिसिंग हो लीजिए। जाता है सर कभी कभी। क्या क्या? स्क्रीनशॉट में सर मिस हो जाता है कभी कभी। इसलिए दोनों बैकअप रखते हैं, ठीक है। तो चैट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। Good morning, sir. यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
Now screen is visible, na? Now screen is visible, na? And I am audible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So from first unit, I think just two topic left: linear search and binary search. Okay. After that, I will start from graph. Actually, madam will continue stack, queue, linked list part, tree part, and I will continue from graph from I think last 4 and 5 modules. So madam will complete 2 and 3, and I will complete 4 and 5 modules. Okay. So better will so good morning once again. Good morning everyone. And today's topic is linear search. First of all, we discuss linear search. After that, we'll discuss binary search. Linear search. Visible ना size increase करना या फिर ठीक है? This one is visible. सब font size बढ़ा दीजिए सर। Font size बढ़ा देते हैं. Okay. ठीक है 14. Yes sir. Okay. Fine. Okay, so first of all, we'll take one example, and first of all, how it works. Actually, linear search. After that, I will discuss the main logic. Okay, so first of all, we'll take some array element. Okay, after that, we'll find, that means within the array, we'll find out the data. That means suppose n number of array elements are there, and we'll find out this. Suppose one element, we'll try to find out this element is that means this element Present in the data or not? present or not. Yes, so this is our main objective. So first of all, we'll take array element. After that, how we'll check? Starting from the beginning, that means we'll start from 0, 1, 2, 3. Suppose any other example, suppose I don't know the student name. Okay, so suppose I want to find out some student's name. Suppose Rakesh is present or not. So one option is randomly, that means we'll start from just that means I'll find out my attendance copy, start from roll number 1. Okay, so start from roll number 1. Yes, I will check his name is student सर name. सर Yes, yes सर please. सर हिंदी में बोलिए ना, इंग्लिश समझ में नहीं आता है. अच्छा, okay, no issues. ठीक है, first of all I will explain in English, after that I will explain again Hindi, no issues, or combinedly will explain. Our main motive is to you understood whatever I am saying, or whatever I am telling, you have got it or not. That is most important. Okay, so language is not matter. So पहला क्या है कि हिंदी में ही बोल रहे हैं, नो इश्यूज. कि सपोज लीनियर सर्च मतलब कि सपोज यहाँ पे स्टूडेंट है, सपोज 80 स्टूडेंट है, और सपोज आप लोग का इलेक्ट्रिकल ब्रांच में और या फिर इसी ब्रांच में इंडिविजुअल अगर सर्च करेंगे तो क्या है कि मेरे यहाँ पे अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस का रोल नंबर है, नेम है. ठीक है, तो मुझे सपोज कोई स्टूडेंट का नाम देखना है, तो मैं जानता नहीं हूँ कि इसका रोल नंबर कितना है, तो मुझे क्या है, एक ही ऑप्शन है कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0. मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा ना, 0. मेरा देखूंगा रोल नंबर 0 में किसका नाम है, 1 में किसका नाम है, 2, 3, 4, 5 इन दिस वे सर्च. तो ये हो गया आपका लीनियर सर्च. लीनियर ही, मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो मैं अभी कैसे सर्च कर रहे हैं ना, लीनियरली सर्च करेंगे, स्टार्ट एकदम स्टार्ट से 0 से. ठीक है, तो ये है.
हाँ, अब कोई नाम है, मे भी वो स्टूडेंट नहीं भी हो सकता है। अब हमें कहाँ देखना है, सपोज सीएससी का स्टूडेंट है, हम इलेक्ट्रिकल में ढूंढ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बाय नेम हम ढूंढ रहे हैं, तो अब उस केस में क्या होगा कि नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है विद इन द एरे। ठीक है, तो मेन फास्ट क्या है, पहले ढूंढना है कि वो डेटा है कि नहीं विद इन द एरे, या फिर विद इन द कॉलेज, विद इन द डिपार्टमेंट, किसी को हम लोग ढूंढते हैं तो है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो नॉट प्रेजेंट। तो इतना ही है इसका लीनियर सर्च का। तो लीनियर सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है मैक्सिमम, जो वर्स्ट केस एकदम, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। दैट मीन्स अगर 100 स्टूडेंट है तो एटलीस्ट लास्ट में भी मुझे मिल सकता है, so that's why worst case time complexity is n, that's why big O n। अगर ऐसा भी हो सकता है कि फास्ट स्टूडेंट भी मुझे मिल सकता है, that is called best case, O of n, big O of 1, that means O of 1। another case is एक एवरेज केस हो सकता है कि बीच में भी हो सकता है या फिर कहीं, तो इस केस में भी आपका एक्चुअली O ऑफ n ही होता है, n plus 1/2, दैट मीन्स O ऑफ n। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं, एरे एलिमेंट। आफ्टर दैट उसमें कैसे हम लोग सर्च करें एक लूप के साथ, और क्या कंडीशन चेक करेंगे वो। ठीक, तो यहाँ पे एरे एलिमेंट है, इंसर्ट ओके। एक सेकंड, एक अर्जेंट कॉल, एक ओके। जीरो एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, सपोज 8 एलिमेंट दिए। तो नाउ तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, 15 5 सपोज 20 35 2 42 67 और 7। ओके, अब ये जो है आपका एरे एलिमेंट है। अब एरे एलिमेंट में कोई एक डेटा सपोज मुझे ढूंढना है, सपोज 42 या फिर 67, कोई भी एक नंबर हम ढूंढना है। 42, ठीक है, वो है कि नहीं विद इन द एरे, so this is our main objective। so 42 जो एलिमेंट है वो विद इन द एरे है ये नहीं है, प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम 0। यहाँ पे क्या चेक करना है ना, इफ ए आई, दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन एक लगाएंगे। तो सपोज एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, i less than n, i plus plus, i plus। नाउ यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करना है कि इफ हर एक के साथ कंपेयर करना है। तो इफ ए आई इज इक्वल्स टू डेटा, if ai is equals to data, if condition is true, then simply print
एलिमेंट फाउंड और एलिमेंट प्रेजेंट। एलिमेंट प्रेजेंट, एलिमेंट प्रेजेंट और एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट प्रेजेंट एट, इसका इंडेक्स किस जगह पे, इंडेक्स प्रेजेंट एट इंडेक्स %d कॉमा i, दैट मीन्स किस पोजीशन में है वो। के बाद यहाँ पे ये बंद होगा। अब कंडीशन ये है कि इसके बाद इसको कैसे, अगर सपोज यहाँ पे अगर कंडीशन चेक करेंगे फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n, तो इनिशियली i इक्वल्स टू 0 मीन 15, तो ai दैट मीन्स 15 इज इक्वल्स टू डेटा, डेटा मीन्स यहाँ पे क्या है ना 42, डेटा जो है वो 40, जो Your voice is not coming, sir. वॉइस इज नॉट कमिंग नाउ। Now it is coming, sir. ओके, जहां तक हम लोग को लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, एक्चुअली हम लोग जो कनेक्शन करते हैं, एक्चुअली आप लोग का यहाँ पे 86 स्टूडेंट है, तो होस्टिंग करने से थोड़ा सा नेट का फास्ट मतलब ज़्यादा हो चाहिए। एज ए यूज़र आप लोग हैं, ठीक है, वेल कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसे हम लोग दूसरे क्लास में इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग का 86 है, जहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बोलना वो चीज़, ओके, समटाइम्स वो हो जाता है। अभी ठीक है ना, Yes, sir. अभी ठीक है ना, ओके, बोलना लेकिन बीच में, ठीक है, हाँ, कभी कभी वो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अभी नाउ 42, सो फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, ये कंडीशन है। नाउ इफ ai मीन्स a0, so within the a0 which element is there, now 15, so 15 is equals to data, condition is false, false. yes, that means, so next Yes, again sir. we'll check I equals to 1, i equals to 1, i equals to जब 1 होगा ai, that means 5 is equals to data, condition is false। तो इस तरह से नेक्स्ट when a2 that means 20 is equals to data, condition is false। फिर से चेक करेंगे नेक्स्ट a3 means 35 is equals to data, I is equal to 5, then condition is true. yes, हाँ, when I equals to 5, that means a5 means 42 is equals to data, so that means element present at index %di, i का वैल्यू कितना है 5। बट माय क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट हम लोग को चेक करने का जरूरत है 6 और 7 में, जरूरत नहीं है, जब No, डेटा, sir. यस, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक ब्रेक कंडीशन लगा देते हैं। जैसे ही हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे डेटा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रेक, जैसे ब्रेक लगा दिए। अब नेक्स्ट जैसे हम जरूरत नहीं है फालतू, जब हमें ये डेटा मिल ही गया है तो हम लास्ट तक जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए हम लोग ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने Yes, sir, look. यस, सर अगर हम रिटर्न भी कर देंगे तो मे बी सर वो रिटर्न भी मतलब कि सर वहां से भी तो कंसोल रिटर्न हो जाता है सर। हाँ वहां से भी होगा, ठीक है, वहां से भी होगा, लेकिन अभी अगर सिंपल हम देखते हैं अगर इसको, तो सिंपली क्या करेंगे ना, एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स %di ब्रेक सिंपली। इसके बाद अब नेक्स्ट कंडीशन ये चेक करेंगे कि ओके फाइन, अब ये कंडीशन होगा, सपोज
आपके पास अभी हम लोग एक एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे 60, ठीक है, सपोज डेटा जो है 60, अब 60 जब आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पे 60, ठीक है, तो 60 अगर ढूंढेंगे तो हम लोग को देखना है यहाँ पे लास्ट कंडीशन तक चले जाएंगे, लेकिन हम लोग को वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है। लास्ट कंडीशन मतलब i इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स i इक्वल्स टू 7, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 7, फिर यहाँ पे चेक करेंगे, नेक्स्ट i का वैल्यू 8 हो जाएगा, तब कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, फॉल्स हो जाएगा सर। तब हम लोग बाहर में आ जाएंगे, बाहर में आके दैट मीन्स i का वैल्यू 8 है, ठीक है, तब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर इफ यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ i का जब वैल्यू i इज इक्वल्स टू n क्यों है कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 8 है, यहाँ पे नंबर Yes, ऑफ sir. एलिमेंट 8 है, तो दैट मीन्स जस्ट i का वैल्यू जब इफ i इज इक्वल्स टू n, तब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एलिमेंट, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंटफ में सिंपली यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, एलिमेंट नॉट फाउंड और नॉट प्रेजेंट, जो भी आपका मैसेज देना है, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। ये एक तरीका हुआ, और एक कंडीशन हो सकता है, और एक कोई बोल सकते हैं, मतलब ये एक सिंपल हुआ कि जिसमें हम लोग लीनियर सर्च का मेन लॉजिक हुआ, और भी हो सकता है, जैसे एलिमेंट नॉट प्रेजेंट है, इसके लिए और क्या कर सकते हैं, इफ i इज इक्वल्स टू n, ये कंडीशन जब होता है तो एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। और एक चीज होता है जहाँ पे हम लोग फ्लैग वेरिएबल यूज करते हैं या फिर फाउंड, कुछ भी यूज करके कर सकते हैं, कोई बोल सकते हैं उसका, अगर किसी के पास है वो। और कुछ लॉजिक है किसी के पास, और भी तरीके से मतलब बोल सकते हैं। Sir, using while. यूजिंग, हाँ ये तो ठीक है, और डिफरेंट लूप में कर सकते हैं, लेकिन मेरा है कंडीशन कि यहाँ पे जैसे एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, तो इसके लिए सिंपली एक कंडीशन लगाएं इफ i इज इक्वल्स टू n, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, ओके, ये एक हो गया, ठीक है। अब और कुछ, जैसे यहाँ पे एक चीज हम लोग यूज करते हैं जनरली, एक फ्लैग वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है, तो फ्लैग इनिशियली हम लोग बोलते हैं कि फ्लैग इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया जाता है कि जब तक इनिशियलाइज हम लोग कर देते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल यूज करते हैं, यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल यूज करते हैं, फ्लैग इक्वल्स टू 0। अब इस जगह पे लिखते हैं, यहाँ पे जस्ट सिंपली फ्लैग इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाएं इफ i इज इक्वल्स टू 1, इसी तरह यहाँ पे एक कंडीशन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको एक मिनट, इन प्लेस ऑफ दिस, मतलब ये इसको कंफ्यूज मत हुई, वो एक मैं बताया। अब इस जगह पे सिमिलरली क्या कर सकते हैं ना, इफ फाउंड इज इक्वल्स टू 0, इफ सॉरी इफ आइदर यू कैन यूज फाउंड वेरिएबल या फिर फ्लैग वेरिएबल, कुछ भी, तो हम लोग अभी फ्लैग यूज किए, तो इफ यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, एक दूसरा जगह पे लिखता हूँ नीचे, इफ
ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जस्ट एक अलग तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन वो पहले वाला ठीक है, वो इजी है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, देन आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो अब ये फ्लैग का कंसेप्ट क्या है, इनिशियलाइज एक फ्लैग वेरिएबल हम लोग इनिशियलाइज किए हैं। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैसेज देते हैं 1, अगर नहीं है दैट मीन्स वो फॉल्स, दैट मीन्स यहाँ पे 0। तो अगर फ्लैग इज इक्वल्स टू 0 होता है तब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट नॉट प्रेजेंट देते हैं। तो जब भी ये कंडीशन एकदम लास्ट तक चले गए हमें नहीं मिला, तब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, फ्लैग का वैल्यू 0 ही रह जाता है। तो ये फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द केस। ये है एक तरीका, ठीक है। तो इसको मिक्स अप मत करना, मैं इसको हटा देता हूँ अभी, जो राइट डाउन करना कर सकते हैं लॉजिक को, ये फ्लैग जरूरत नहीं अभी, इसको ठीक है। अच्छा, अब क्या बोले, नाउ अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी बताया, फिर भी यहाँ पे सपोज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक होता है आपका बेस्ट केस। बेस्ट केस मीन्स बेस्ट केस कब होगा ना, सपोज आपने 15 ढूंढ रहे हो, नाउ डेटा 15, तो 15 कहाँ पे है ना, फास्ट जैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं 15 आपको पहला केस में मिल जा रहा है, तब उसको हम बोलते हैं इसका जो बेस्ट केस, जैसे हम ढूंढे 15 एरे ऑफ डेटा, दैट मीन्स A0 इज इक्वल टू डेटा, तो एलिमेंट प्रेजेंट इन द फास्ट एकदम इंडेक्स में। तो इसलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ 1 फास्ट एलिमेंट। हेलो Yes. सर। बोलिए। सर प्रिंट एफ जो फंक्शन लिए है उसके नीचे ब्रेक है, तो सर वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं होगा? कौन सा वाला बोलिए। तो प्रिंट एफ के नीचे ब्रेक है ना, हाँ सर हाँ अगर उसको क्लोज नहीं करेंगे तो सर फर्स्ट ही टाइम पे वो लूप पे चल जाएगा और फिर सर ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे लूप बंद हो रहा है ना, दो बार उसको सुनिए, ठीक है, वो आप जैसे कर उसको एक बार ऑन करके देखना, ठीक है। इसका लॉजिक ये है, आप क्या बोल रहे हो, जैसे ब्रेक के बाद कौन सा वाला बोलो एक बार फिर से। सर जैसे प्रिंट एफ एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स वो हुआ सर, वो वाला फंक्शन, हाँ, उसके तो बाद सर अगर वो एलिमेंट मान लीजिए प्रेजेंट नहीं भी है तो सर ब्रेक वाला काम कर जाएगा, अगर उसको हम लोग नहीं, यहाँ ब्रैकेट के तक अंदर अगर क्लोज नहीं है नहीं तो हम तो करते। जा ही नहीं रहे ना, इसमें तो आ ही नहीं रहे, इस फंक्शन में नहीं आ रहे ना। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, जब ट्रू हो रहा है तब हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, तब इसके जगह पे काम हो रहा है, यहाँ तो ओके जा ही सर। नहीं रहे हम लोग। जब तक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रहा है तब तक यहाँ तो जा नहीं रहे, कंडीशन ट्रू होगा तब हम जा रहे हैं इसके अंदर, एलिमेंट प्रेजेंट एट दिस इंडेक्स, तब हम उसको सिंपली ब्रेक कर रहे हैं कि और आगे हमें सर्च करने का जरूरत नहीं है। सर हाँ बोलिए। अगर I इक्वल्स टू 4 एंड 5 पे दोनों जगह डेटा का वैल्यू सेम हो जाए तब 4 और 5 में दोनों में डेटा का वैल्यू सेम तो हो जाए, मतलब एग्जांपल के लिए। देखिए अल्टीमेटली हम लोग को तो देखना आई का वैल्यू चेंज करेंगे ना सर, आई Yes, का वैल्यू yes. 2 हो जाएगा। यस प्लीज, कुछ बोल रहे थे कोई क्वेश्चन, मुझे एक का समझ में आया कि अगर 4 और 5th पोजीशन में 42 है सपोज, यस यही है ना। यस सर। ओके, तो इस केस में देखिए, ये अगर केस होगा एक्चुअल में हम लोग को मेन जो है कि लीनियर सर्च में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक डेटा उस एरे में प्रेजेंट है ये नहीं, ये कंडीशन देना है। तो 1 हो 2 हो वो प्रेजेंट है,
मतलब मैं जनरल आपका मतलब मेरा अपना व्यू से मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपने राइज किया, लेकिन अल्टीमेट आवर ऑब्जेक्टिव इज वो एलिमेंट है ये नहीं है, भले 2 जगह है 3 जगह है, लेकिन अल्टीमेटली है ये। अब ठीक है, अगर आप पोजीशन के लिए फिर थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा आपको, कि जैसे यहाँ पे इस पोजीशन में है, तो हम लोग इस कंडीशन के लिए अभी लगा रहे हैं कि इस पोजीशन में है। अब उस जगह पे हम क्या करेंगे, ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, फिर से चार्ज करना पड़ेगा लास्ट तक, फिर जिस पोजीशन में है वही वाला फिर से रिटर्न करेगा। ब्रेक इसलिए लगा रहे हैं कि जब हमें मिल गया एक एलिमेंट तो हम आगे नहीं सर्च करेंगे, इसलिए ब्रेक कंडीशन लगा है कि नो नीड टू सर्च और दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि अल्टीमेट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कि पर्टिकुलर दिस डेटा इज प्रेजेंट और नॉट। अगर ऐसा केस होगा कि और भी मैं लास्ट तक फिर सर्च करेंगे, क्योंकि उस जगह पे फिर ब्रेक लगाने से नहीं होगा। यस यस सर। देखिए, ये एक डिस्कशन का जगह है ना, तो मे बी समटाइम्स मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, आपका भी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आज तक कोई नहीं पूछा है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा है, आपका दिमाग से आ रहा है, और मुझे तो ये अच्छा लगता है आप लोग का इसमें, जो एटलीस्ट ये पॉपुलर मतलब क्वेश्चन एराइज करते हैं और डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मोड में अभी तक का जो देख रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट साइलेंट रहते हैं और कुछ नहीं, लेकिन आप लोग में भी फ्यू स्टूडेंट हो जो भी हो, लेकिन एटलीस्ट इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज गुड। थैंक यू सर। ठीक है, ये एक, और इसी से हम लोग को इसमें हम अपना बेनिफिट होता है, क्योंकि टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, हम लोग क्या होता है कि सिंपल जो है एज इट इज जा रहा है, लेकिन आपका जो डिफरेंट डिफरेंट अभी अभी प्रेजेंट स्टूडेंट का जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन एराइज होता है, दैट इज गुड। ठीक है, उसमें हम भी अलग तरीका से सर यस सर अगर वो वैसा सिचुएशन अगर आएगा कि सर वो डेटा और भी आगे कहीं प्रेजेंट है, तो सर इसमें ब्रेक को हटा देंगे और एक न्यू वेरिएबल ले लेंगे और फिर एकदम उसमें प्लस प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा। एकदम एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, वही मैंने बोला, फिर ब्रेक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये, और एक चीज सबसे, और एक जो प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव साइन जो मुझे मुझे जो दिखता है, यू पीपल आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड और इसी बैकग्राउंड, स्टिल यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो एटलीस्ट अच्छा लगता है। ठीक है, जनरली जो साइकोलॉजी है और जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है कि ठीक है ये थोड़ा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिकल और इसी पीपुलर थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आप लोग का बेस में अभी मैं देख रहा हूँ, जो अब आगे भी देख रहा हूँ, लेकिन ये एक अच्छा लग रहा है। ठीक है, गुड। ओके, तो बेस्ट केस आप लोग को समझ में है कि बेस्ट केस मीन फास्ट एलिमेंट अगर मिल जाता है तो वो बेस्ट केस होता है। अब सबसे वर्स्ट केस क्या होगा? So big of n. big one, that means लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट आई एलिमेंट का है, वैल्यू i7 में, तो उसी का वैल्यू जो फर्स्ट में है। हाँ, दैट मीन्स हम बोलेंगे कि एकदम लास्ट एलिमेंट जो है वहां पे मिल रहा है, ये केस हो सकता है, तो वो हो जाएगा आपका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसीलिए उसका लास्ट में जितना सारा एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट में हम कंपेरिजन करने का जरूरत पड़ा है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का अगर कंपेरिजन करेंगे तो वो बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ यहाँ पे एन। ठीक है, और एक चीज है एवरेज केस। एवरेज केस कब होगा? एवरेज के जितना एलिमेंट है उसको जितना दो से एलिमेंट है, डिवाइड कर देंगे। सपोज क्या है कि फास्ट एलिमेंट भी मिल सकता है ना? So sum of all possible cases divide by number of cases. एकदम वेरी गुड, Total number. एकदम आप लोगों को पता है, वेरी गुड। 1 + 2 + डॉट डॉट ऐसे करके n, है ना? Yes. ठीक है ना, बाई डिवाइडेड बाई N. आप लोग ऑलरेडी जानते हो, वेरी गुड। तो n इंटू n + 1/2 जो फॉर्मूला है इसका AP का, तो n इंटू N into n plus 2 divided by 2. n इंटू n + 1/2 1 n+1 सर। by 2
और एक ऑलरेडी यहाँ पे n है, तो n कट जाएगा, तो इसके मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका n + 1/2, that means O of n + 1/2, that means O of n ही एक्चुअली, ठीक है। तो ये है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। ओके, सो आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-4 मिनट है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है बाइनरी सर्च स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका बाइनरी सर्च। लॉजिक सबको मालूम ही है बाइनरी सर्च का, ठीक है। बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है, यस। तो बाइनरी सर्च का फास्ट कंडीशन क्या है? ऑल द एरे एलिमेंट आर सॉर्टेड, ये कंडीशन होना चाहिए, तब हम लोग बाइनरी सर्च वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द एरे एलिमेंट आर सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है, तब हम उनको कर सकते हैं। दैट मीन्स वहां पे बाइनरी सर्च वी कैन अप्लाई, ये नंबर 1 कंडीशन है। और यहाँ पे फास्ट एलिमेंट दैट मीन्स लोअर एलिमेंट और दैट मीन्स लेफ्ट एकदम फास्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे मिड एलिमेंट हम लोग सर्च करते हैं, मिड में फिर मिड एरे मिड उसका पोजीशन देखते हैं, वो डेटा आइदर एरे मिड में हो सकता है या फिर उसका छोटा लेफ्ट या फिर ग्रेटर में हो सकता है। फिर उसको यहाँ पे ये भी डिवाइड एंड कंकर मेथड यूज करते हैं, डिवाइड एंड कंकर एलिमेंट, दैट मीन्स वो डिवाइड एंड कंकर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिवाइड एंड कंकर मेथड यूज करके हम लोग जो है बाइनरी सर्च करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है कि ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है, 0 से लेके n एलिमेंट। अब मान लीजिए यहाँ पे इसी एरिया में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ मैं, सपोज 0 से लेके 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा ना, सपोज आपने फाइंड आउट करे सपोज 42, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मिड एलिमेंट होगा, मिड इक्वल्स टू ये L इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू लेफ्ट, L इक्वल्स टू 0 एंड R इक्वल्स टू 7। तो मिड एलिमेंट कौन सा होगा ना, L प्लस दैट मीन्स 0 प्लस L प्लस R/2, L प्लस R/2, L प्लस R/2 means 0 प्लस 7, so 7/2, so 3.5। तो यहाँ पे फ्लोर वैल्यू लिया जाता है, यहाँ पे फ्लोर वैल्यू लेते हैं, 3.5 मीन 3 पोजीशन, ओके। फ्लोर वैल्यू एक होता है सीलिंग वैल्यू और एक होता है फ्लोर वैल्यू। तो एक्चुअल फॉर्मूला जो है यहाँ पे एक सिंबल होता है, इसमें नहीं दिखा सकते हैं, एक फ्लोर वैल्यू के लिए जो सिंबल होता है, थर्ड ब्रैकेट ही है लेकिन लोअर पोर्शन जो है फ्लोर वैल्यू, so we'll take floor value, so that means mid position हो जाएगा 3। so free जो है एरे मिड में हो जाएगा 35। now we'll compare suppose 42, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे, जो डेटा है 42 इज इक्वल्स टू एरे मिड, एक कंडीशन ये हो सकता है, या फिर जो डेटा है वो लेस देन 42 हो सकता है, या फिर जो डेटा है सॉरी जो एरे मिड। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। 3 कंडीशन क्या क्या है ना, डेटा इज इक्वल्स टू एरे मिड, डेटा इज इक्वल्स टू एरे मिड, वन कंडीशन इज data is equals to array mid, data is equals to array